Okay, so lastly we are learning about the AM and the PM, right? Next time we learn about the calendar. What do you mean by the calendar? Calendar किसके लिए यूज होता है? अगर आपको कोई डे देखना हो, मंथ देखना हो, ईयर देखना हो, at that time you have to be use the calendar and it's available everywhere. आप देख सकते हो कि आपके घर में भी होता है, आपके स्कूल में भी होता है. इवन इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मोबाइल फोन. वो मोबाइल फोन में भी अवेलेबल रहता है. So calendar is a very useful thing nowadays. Now we are going to learn the next thing, that is the conversion of time. Conversion किस तरह से करना है? Time का conversion with use of the calendar. Calendar इसमें बहुत important part है. Weeks होना, days होना, that is a one type of time. So we are telling that conversion of time. जिस तरह से हम conversion करते थे liter to milliliter, then centimeter to meter, meter to kilometer, gram to kilogram, like that we have to convert it again. But it's slight different. यहाँ पे थोड़ा different होगा. वहाँ पे हम 100,000 का use करते थे. Here there is a different thing. First thing we are learning that first conversion weeks to days. Good morning. First conversion we are going to learn weeks to days. We have a not a much time, so that's why I'm just writing everything. Then I will be share this screenshot to you and also share the file of the Saturday class. मैं Saturday की क्लास की भी फाइल आपको इसके साथ ही भेजूंगी. So you have to complete the both things. Tomorrow is a holiday for the educational. There is no educational thing that will be happen. Okay, weeks to days. First, weeks to days का मतलब क्या हुआ? एक वीक होता है, आपको पता है, 1 week, 2 week, 3 week. In a month there are 4 or 5 weeks, right? So you have to be remember one thing. 1 week equals to 7 days. एक वीक का मतलब क्या होता है? 7 days. मतलब कि अगर आपको कोई भी वीक को कन्वर्ट करना हो डेज के अंदर, तो आप क्या करोगे? उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे कि मैंने बोला था 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो भी मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे इन द कन्वर्जन ऑफ द लेंथ, राइट? बट यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ टाइम है. तो अगर आपको वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो आप उस वीक को 7 से मल्टीप्लाई करोगे. Remember this thing, whenever you want to convert any week to the days, then you have to be compulsory multiply that week number to the 7. Okay, let's see the example. First, convert week into the days to weeks. 2 weeks. फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से हम मीटर सेंटीमीटर में लाइंस लिखते थे वैसे ही लिखनी है, बस यहाँ पे वर्ड्स और नंबर्स चेंज हो जाएंगे. सो 1 week equals to 7 days. So 2 weeks equals to 2 multiplied by 7 days equals to 14 days. This is your answer. Simple. 2 sevens are 14. Next example, 13 weeks. 13 weeks. So again you have to be write down 1 week equals to 7 days. So 13 weeks equals to 13 multiplied by 7 days. 13 sevens are 13 weeks equals to 1 to 91 days. So this one is more simple than you convert the meter and the centimeter. At that time you have to convert, multiply with the 100 and the 1000.
but here you have to be convert with the 7. ओके यहाँ पे सिर्फ एक ही कन्वर्जन नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि किसका कन्वर्जन करने के लिए कौन से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. 1 week equals to 7 days. So this one is the first conversion of the time. Now we are going to learn next conversion. The most highest is the week, then the days. Second conversion, days to hours. Days to hours. हमें पता है 1 week equals to 7 days. Now anyone can tell me 1 day equals to how many hours? 24. तो बस आपको वही याद रखना है. अगर आपको कुछ भी कन्वर्ट करना है तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करो. रिमेंबर वन थिंग, 1 day equals to hours. हो गया हमारा. ये सारी चीजें आपको पता ही है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल 3. Good morning. 3 days. Now we have to convert 3 days to the hours. How can you convert? First of all, you can see 1 day equals to 24 hours. So compulsory you have to write down 1 day equals to 24 hours. Now you have to convert the 3 days into hours. So you have to write down 3 days equals to 3, because you have a 3 days, multiply by 24 hours. So 3 days equals to, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से करोगे 24 multiply by 3. 24 multiply by 3. यहाँ से आपको मल्टीप्लीकेशन आता है. 3 4s are 12. One will be a query. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. So 3 days equals to 72 hours. Yes. Who have a query? No one. Okay. Now second example. 12 days. हाँ बोलो. 12 days. We have to convert these days to the hours. तो आपको कोई भी कन्वर्जन करना हो तो जिसमें कन्वर्जन करना, जैसे कि हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले डे और आवर के बीच में क्या रिलेशनशिप है पहले वो लाइन लिखोगे. देन यू कैन डू द कन्वर्जन, बिकॉज दैट विल बी इजी फॉर यू. वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. तो मैं पहले डे और आवर का रिलेशन, मतलब 1 day equals to 24 hours. So 1 day equals to 24 hours. So 12 days equals to 12 multiplied by 24 hours. तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन. 24 multiplied by 12. 2 digit by the 2 digit. So first of all, 2 multiplied by 4. 2 4s are 8. 2 2s are 4. Now sum for the 1. ये 10 प्लेस पे है तो आपको यहाँ पे एक 0 रखना पड़ेगा. This thing already we learn in the term 1. 1 4s are 4. 1 2s are 2. 8 4 plus 4 8. 2 plus 0 2. Yes, anyone have a query? Okay, so write down 12 days equals to 288 hours. That's it.
This is our second conversion, days into the hours. Now थर्ड कन्वर्जन, पहले हमने वीक से डे में कन्वर्ट किया, सेकंड हमने डे को आवर्स में कन्वर्ट किया. नाउ वी आर कन्वर्टिंग आवर्स टू द मिनट. वी आर गोइंग टू द लोएस्ट, हम लोएस्ट पे जाएंगे. ओके, सो थर्ड कन्वर्जन इज आवर्स टू मिनट्स. थर्ड कन्वर्जन इज आवर्स to the minute. Hours to minutes. Okay, so anyone can tell me 1 hour equals to how many minutes? 1 hour equals to how many minutes? Yes, 60 minutes. तो आपको बस वही याद रखना है, 1 hour equals to 60 minutes. जब हमें वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना था तब हम 1 week इक्वल्स टू 7 days लेते थे, तो इसकी वजह से हम नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करते थे. सेकेंडली वी आर टेकिंग द कन्वर्जन ऑफ डेज टू आवर, फिर हमने डे को आवर्स में कन्वर्ट किया. एंड यू नो दैट 1 day इक्वल्स टू 24 hours. आपको पता है एक दिन 1 day इक्वल्स टू 24 hours. तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप 24 से कन्वर्ट करते थे. Now third is the 1 hour hour to the minute, and you know that 1 hour equals to 60 minutes. ये चीज आपको पता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नंबर होंगे, नंबर ऑफ आवर्स दिए होंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप उस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे. जो भी नंबर होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे. वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी द सम ऑफ द एग्जांपल्स. फर्स्ट 7 hours. I request to the student, please mute yourself. 7 hours. So now we have to convert this 7 hours to the minute. So first thing you have to write down 1 hour equals to 60 minutes. So मैं इसके स्नैप्स भेजने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनो if possible, and I will also share the possible, then I will also share the video of this. 7 hours, अभी 7 hour 1 hour का तो 60 मिनट आपको पता है. अभी 7 hour को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो आप करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स. For that you have to do the multiplication 60 multiplied by 7. Second method I will be show you. You have to forget the 0 at that time. 7 multiplied by 6. 7 6 are 42 and add this 0 here. आप ये 0 को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. बट लेट्स सी, 7 zeros are 0. 6 sevens are 42. It's the same, so you can try both of the methods. So 7 hours equals to 420 minutes. Second example, 42 hours. 42 hours. Now we have to convert these hours to the minutes. So first of all, first sentence you have to be write down 1 hour equals to 60 minutes. Right? फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया, अभी सेकंड सेंटेंस भी आपको आता है. सो 42 hours equals to 60 multiplied by 42 minutes.
Now do the multiplication. 60 multiply by 42. अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप क्या करोगे, 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर लास्ट में एक जो जीरो दिख रहा है 60 के अंदर, वो लास्ट में आप ऐड कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, आपको किस तरह से करना है, आपको जो इजी लगता हो वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। 42 को 6 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में एक जीरो ऐड कर दो। इट्स फॉर एवरी नंबर, आप कोई भी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही करना है। जो भी नंबर दिया होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में एक जीरो को ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम आंसर विल बी केम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। First you can see there is a 0, 2s are 0, 0 4s are 0. Now turn for the 6, so first you have to put a 0, because 6 जो है वो टेंथ के प्लेस पे, तो हमें पहले 0 रखना पड़ेगा। 6 2s are 12, 1 will be a carry. 6 4s are 24 plus 1 25. 0 2 5 2. So the answer is 42 hours equals to 2520 minutes. ओके, सो फर्स्ट कन्वर्जन था हमारा वीक्स टू डे, जिसमें 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज हमने लिया था। सेकंड हमने लिया डेज टू द आवर्स, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। थर्ड वी आर टेकिंग आवर्स टू द मिनट, in that we are taking 1 hour equals to 60 minutes. Now last conversion of the time, that is minute to the second. Last conversion is minute to the second. Fourth, minute to second. So anyone can tell me 1 minute equals to how many seconds? Yes, so 60 seconds. तो बस आपको वही प्रोसेस करनी है जो आपने आवर और आवर्स टू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपने 60 से मल्टीप्लाई किया था, सेम अगर आपको मिनट टू सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप वापस से 60 से मल्टीप्लाई करो, तो वो जो मिनट का नंबर होगा वो सेकंड में मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट 15 minutes. 15 minutes. Okay, so first sentence you have to compulsory write what is the relation between the minute and the second. So 1 minute equals to 60 seconds. So now we have to be convert this minute to the 15 minute to the second. So you have to write down 15 minutes equals to 15 multiplied by 16 seconds. Okay, so for now I am multiply 15 and 6 together. मैं 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लास्ट में ये जो जीरो है उसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेथड सूट नहीं होती है तो आप इस तरह से 16 मल्टीप्लाई बाय 15 करके भी अपना आंसर ला सकते हो। ओके, सो 15 6 आर 90, 15 6 आर 19, और ये जो जीरो है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, दैट इज 900 seconds. So 15 minutes equals to 900 seconds. Second, 23 minutes. 23 minutes. So 1 minute equals to 60 seconds. So 23 minutes
equals to 60 multiplied by 23 seconds. Multiply 6 and 23. Okay, 6 threes are 8. 1 will be a query. 6 twos are 12 plus 1, 13. And adding the 0 last one. 1380 seconds. This is your answer. Okay, so if you have a query in the conversion, so you can ask me. बोलो. Yes. हाँ, मैंने यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स इसलिए लिए क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें मोस्टली 1 डिजिट वाला नंबर ही दिया हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस तो वहां से होने ही वाली है, राइट? इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल 2 डिजिट्स में लिए. डोंट वरी, आई विल शेयर दिस वन ऑल्सो. कल का टाइम भी है आपके पास, कल छुट्टी भी है, तो आप आराम से इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू बी कंप्लीटेड नाउ. Okay, so if you don't have an if you yes, please speak. Okay, so if you don't have a query, so we yes, आप क्या बोल रहे हैं? किरण, पहले तो आपकी आवाज अच्छे से आती नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता आप क्या बोलते हो. हाँ, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखोगे? मैं भेजूंगी, मैंने फोटोज, इसलिए मैंने बोला. यस. हाँ हाँ हाँ. मुझे आपकी आवाज बहुत कट होके आती है. किरण की ही आवाज ऐसे आती है. मैं भेजने वाली हूँ. मैंने सैटरडे का भी साथ में ही भेजने वाली हूँ, तो आप सब कुछ कंटिन्यू लिख सकते हो. हम्म. हाँ, तो मैं वो भेजने ही वाली हूँ साथ में ही इसके. ओके, कोई बात नहीं, मैं भेजने वाली हूँ. आई नो दैट आई फॉरगॉट टू सेंड इट. मुझे. हाँ, बोलो क्या क्वेरी है. बोलो क्या क्वेरी है. हाँ, एक्सरसाइज 8.5 का क्या? हाँ, मैंने वही तो बोला. मैं अभी इसके साथ ये क्लास होने के खत्म होने के बाद इस वीडियो के जो नोट्स है वो, और जो सैटरडे की वीडियो थी उसके जो नोट्स है, दोनों कंबाइन करके आपको भेजूंगी. Okay, now exercise 8.6, convert weeks into the days. Question number 1. If possible, try. No. Okay. First, क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया?
क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, ए 3 वीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीक को डेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 1 वीक इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज। कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो पहले रिवाइज करो कि कन्वर्जन जिस तरह से करना है तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आपको ये याद रखना है, वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। एक वीक का मतलब होता है 7 डेज। तो अभी 3 वीक को कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली 7 से। सो यू विल बी राइट डाउन 3 वीक्स equals to 3 multiplied by 7 days. Answer is the 21 days. Okay. Now going to solve the D. 15 weeks. 15 weeks. So again 1 week equals to 7 days. So 15 weeks equals to 15 multiplied by 7 weeks. So the answer is 15 weeks equals to 15 sevens are 105 days. 15 weeks equals to 105 days. Okay, here I am writing your homework into question number 1. B, C and E is your homework. B, C and E is your homework. Now question number 2, convert. Question number 2, convert days into hours. ओके, डेज इंटू आवर्स में कन्वर्ट करना है तो एक बार रिवाइज कर दो। 1 डे इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? दैट इज 24 आवर्स। तो उस हिसाब से आपको कन्वर्जन करना रहेगा। सो फर्स्ट ए 5 days, ए 5 days। सो अगेन 1 day equals to 24 hours. So 5 days equals to 24 multiplied by 5 hours. Now 24 multiply by 5। आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन साइड में करना है और फिर यहाँ पे आंसर लिखना है 120 hours। 5 days equals to 120 hours। Now C 12 days। C already we are solving the 12 days. So again 1 day equals to 24 hours. So 12 days equals to 24 multiplied by 12 hours. So multiplication will be like this: 24 multiplied by 12. So 2 fours are 8, 2 twos are 4, 1. First you have to put a 0 because we have to do the multiplication of tens place value. 1 fours are 4, 1 threes are 2. 288. We already solved in the example, previous example. So 12 days equals to 288 hours. Okay. B, D and E is your homework in the question number. Wait. Now third, question number 3. Now it's time for the question number 3. That is the conversion of hours to minutes. Okay.
फर्स्ट ए 4 hours। तो आपको पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको याद करना है पहले अगर आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसके दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes। You have to first remember this, so write down this thing. 1 hour equals to 60 minutes. So 4 hours equals to 4 multiplied by 60 minutes. 4 6 are 24 and putting last zero 240 minutes. 4 hours equals to okay. See 11 hours. 11 hours. So again 1 hour equals to 60 minutes. So 11, please mute yourself. Hours equals to 11 multiplied by 60 minutes. 11 6 are 11 6 are 66 and putting this zero last 660 minutes. So 11 hours. B, D and E is your homework in the question number 3. Now last question of the exercise. Convert minutes to the second. ओके सो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले याद कर देना पड़ेगा। अगर मुझे 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 minute equals to 60 seconds. Then you have to be start the conversion. So first is 9 minutes. Please mute yourself. 9 minutes. So 1 minute equals to 60 seconds. So 9 minutes equals to 9 multiplied by 60 seconds. So 9 6 are 9 6 are 54 and last time adding 0 550 seconds. 9 minutes equals to 550 seconds. Now solving the D. 12 minutes 12 minutes. So again 1 minute equals to 60 seconds. So 12 minutes 12 multiplied by 60 seconds. Now 12 6 are 12 6 are 72 and lastly adding the 0 720 seconds. And the B, C and E is your homework in the question number 4. Okay, so here we done our class. Okay. Directly bye. I want to talk to you. Why are you telling the bye? ओके सो हियर फॉर टास्क फॉर अ कंप्यूटर का वीडियो तो अपलोड हो चुका है, लिंक मैंने भेज दी है। लेकिन अभी आपको जिस तरह से आपने मैथ्स का टास्क अभी तक तो कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ ही जनों ने टास्क कंप्लीट किया है और मुझे सबमिट करवाया है। जो मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनाने के लिए बोला था, मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ और उस प्रोजेक्ट के मार्क्स भी काउंट होने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचना मैंने नहीं भेजा तो चलेगा।
जिसने नहीं भेजा मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। आई एम टेलिंग क्लियरली, मैं क्लियरली उनको ही बोल रही हूँ जिन्होंने नहीं भेजा है। राइट। नेक्स्ट थिंग, आपको सेम टास्क आपको कंप्यूटर में भी करना है। आपको ओपन ऑफिस राइटर जो चैप्टर हमने सीखा, तो वही चैप्टर में आपको ओपन ऑफिस राइटर के अंदर डिफरेंट शेप्स का, पिक्चर्स का यूज करना है। और आपको क्रेडिट या फिर डेबिट, आपकी चॉइस का, आपको जो भी बनाना हो वो बना सकते हो। दोनों की इमेजेस आपको मैच मैच wait and listen to me. First complete my instruction, then speak up. ओके, सो आपने मैथ्स की जो पीपीटी मैंने भेजी थी उसमें क्रेडिट और डेबिट की इमेजेस दी हुई है। अगर नहीं है तो आप आपके पेरेंट के पास से क्रेडिट या फिर डेबिट लेके उसको कंप्यूटर में बना सकते हो। इंस्ट्रक्शन मैं आपको फुल्ली प्रोसेस तो भेजूंगी। इफ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। इफ यू डोंट हैव, I will talk to the principal, sir. What he say, then I will be put the marks for you. Okay, अगर वो नहीं हुआ, हाँ, मैं पूरे इंस्ट्रक्शंस भी भेज रही हूँ। मैं कंप्यूटर के लिए भी इंस्ट्रक्शन भेज रही हूँ। जिस तरह से मैंने मैथ्स के लिए इंस्ट्रक्शन भेजे थे, सेम इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर के लिए भी भेज रही हूँ। किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और आपको क्रेडिट या फिर डेबिट आपके कंप्यूटर में ओपन ऑफिस राइटर में बनाना है। इफ यू डोंट हैव ओपन ऑफिस राइटर, यू कैन बी ऑल्सो परफॉर्मिंग द वर्ड। एमएस वर्ड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में होता ही है, तो उसमें भी आप बना सकते हो। इट इज योर्स। यस। तो तनीशी, मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें आपका ध्यान कहाँ पे था? मैंने अभी बोला नहीं है, उसके लिए अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगी। अगर वो कुछ बोलते हैं कि आप उनकी ओरल एग्जाम ले लो, तो फिर आपको ओरल एग्जाम देनी पड़ेगी।